تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھتا۔ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھ چکے۔ یہ بڑی تباہی ہے۔ مسلمانوں، تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، قرآن میں بھی تمہارا نام۔ لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے تھے، دوسرے کا بھی احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے بھائی ایک کو فالو کرو، دوسرے پر اعتراض مت کرو۔ السلام علیکم۔ فرقہ واریت اس امت کا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے پیش کر رہا ہے کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر فرقہ واریت ہے، مسلمانوں کے اندر یکجہت نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر فرقہ واریت ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا فرقہ واریت سچ میں اتنا بڑا امت کا مسئلہ ہے یا صرف محض مبالغہ آرائیہ ہے، ایک ٹرینڈ ہے، ایک شوشہ ہے اپنی دکانیں چمکانے کا؟ لیکن اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو کیوں اگر ایک سول انجینئر اس پر بات کرے تو وہ لوگوں کا امام بن جائے؟ اگر کوئی اس پر بات کرے تو وہ راتوں رات وائرل ہو جائے؟ پھر ایسا کیوں ہے؟ اور امت کے اندر جو 72 فرقے آئیں گے وہ کون کون سے فرقے ہوں گے، ان کی کیا تعلیمات ہوگی؟ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ایک اہم حدیث اور صحیح حدیث کی طرف جانا ہوگا جو ابو داؤد کی حدیث ہے 4596 کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے ہیں اور عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہیں اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے۔ اور انہی لفظوں کے ساتھ دوسری حدیث ابن ماجہ کی 3992 کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر 71 فرقے ہیں جن میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی 70 جہنم میں جائیں گے، اور عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہیں جس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور واللہ قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ تو جو 72 فرقے آئیں گے وہ کون کون سے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی ٹیچنگز کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان فرقوں کو امام ابن جوزی نے ایک ترتیب دی ہے اور انہوں نے 6 میجر فرقے اور پھر اس کی 12 شاخیں بتائی ہے، کہ مطلب یہ 6 میجر فرقے جو ہیں یہی روٹ کاز ہے سارے فرقوں کے، اور ان کی 12 شاخیں ہیں، اور پھر ان کی تعلیمات کیا ہے وہ ہم آگے بتائیں گے۔ جو 6 میجر فرقے ہیں ان میں سے سب سے پہلے حروریہ، دوسرا ہے قادریہ، تیسرا ہے جہیمیہ، چوتھا ہے جبریہ، پانچواں ہے رافضیہ اور چھٹا ہے مرضیہ۔ یہ 6 مین فرقے ہیں، پھر انہی کی 12 شاخیں آگے نکلی ہے، تو 12 × 6 72، مطلب 72 فرقے یہ ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں صرف حروریہ فرقے کی جو 12 شاخیں ہیں ان کی کیا تعلیمات تھی، ان کی کیا ٹیچنگز تھی، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی شاخ حروریہ فرقے کی ہے وہ ہے ارزقیہ، جس کا بانی ابو راشد نافع بن ارزق خارجی تھا، جن کا یہ ماننا تھا، جن کا یہ زوم تھا کہ روئی زمین پر کوئی بھی ہمارے علاوہ مومن نہیں ہے سوائے اس کے جو ہمیں فالو کر لے، صرف وہی مومن ہے، اور یہ اہل قبلہ کو کافر قرار دیتے تھے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت صحابہ اور تابعین کی جماعت موجود تھی، پھر بھی یہ صحابہ اور تابعین کو کافر کہتے تھے اور صرف خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ یہ پہلی شاخ تھی حروریہ فرقے کی۔ اور دوسری شاخ عباضیہ، جس کا بانی عبداللہ بن عباس تھا، جن کا یہ ماننا تھا کہ روئی زمین پر جو ہمیں فالو کرے گا صرف وہی مومن ہے، جو ہمیں فالو نہیں کرے گا وہ منافق ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ مطلب یہ صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ مطلب آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں ان کو گمراہ عقائد والے کہلاتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف خود کو حق پر سمجھتے ہیں۔ تو ان کی یہ تعلیمات تھی کہ صرف ہم حق پر ہیں، جو ہمیں نہیں مانے گا وہ منافق ہے، مطلب وہ ظاہری طور پر مسلمان ہوگا لیکن اندر سے وہ کافر ہوگا۔ یہ دوسری شاخ تھی حروریہ فرقے کی۔ اور تیسری شاخ سالبیہ تھی، جس کا بانی سالبہ بن مشکان تھا، جن کی یہ تعلیمات تھی کہ اللہ رب العزت نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے اور نہ ہی تقدیر نام کی کوئی چیز ہے، مطلب تقدیر سے ہی انکار کر دیا۔
जो कुरान और सुन्नत की तालीम है, जो कुरान और हदीस की तालीम है, उससे हटकर अपना एक अलग कंसेप्ट निकाला कि तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं है, हम तकदीर को मानते ही नहीं, जो बंदा खुद करेगा वही होगा, तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं है, अल्लाह ने कुछ भी नहीं लिखा, अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा है। इस गुमराह फिरके की ये तालीमात थी कि तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं है। और चौथी शाख हरूरिया फिरके की हाज़मिया थी, जिनका बानी हाजिम बिन अली था, जिनका ये मानना था कि हमें समझ नहीं आता कि ईमान क्या चीज है, मखलूक सारी की सारी माजूर है क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि ईमान क्या चीज है, इसलिए उनको कोई भी जज़ा और सजा नहीं होगी, वो बरी ज़िम्मा है क्योंकि उनको पता ही नहीं ईमान क्या चीज है, मतलब हम ईमान को ही नहीं पहचान सकते। इस गुमराह फिरके का ये अकीदा था। ये चौथी शाख थी हरूरिया फिरके की। पांचवी शाख हरूरिया फिरके की खलफिया थी, जिसका बानी खलफ खारजी था, जिनका ये मानना था कि रोई जमीन पर जो भी मर्द और औरत है, अगर वो जिहाद नहीं करते तलवार वाला जिहाद, तो वो काफिर है। मतलब अल्लाह के रसूल ने जो तालीमात दी है कि कब जिहाद फर्ज है, कब क्या करना है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बताया कब जिहाद फर्ज नहीं, बल्कि हर वक्त आपको जिहाद करना है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो नहीं करे तो वो काफिर है। मतलब आम लोगों पर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि जो जिहाद नहीं करेंगे वो काफिर है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और छठी शाख हरूरिया फिरके की कूजिया थी, जिनका ये मानना था कि हम किसी को छू नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन नजिस है कौन पाक है, इसलिए ना हम किसी के साथ खा सकते हैं न किसी के साथ पी सकते हैं जब तक वो हमारे सामने तौबा करके नहा न ले। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कौन पाक है और कौन नजिस है, इसलिए ना हम किसी के साथ बैठ सकते हैं, न किसी के साथ खा सकते हैं, न किसी के साथ हम पी सकते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, मैनर्स, अखलाक, ये सारी चीजें, मॉरलिटी, उन सबको छोड़कर अपना एक अलग कंसेप्ट, अपनी एक अलग फिलॉसफी निकाली कि भाई ऐसा है, हम किसी को पहचान ही नहीं सकते कौन पाक है और कौन नापाक है, इसलिए हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते, किसी के साथ खा नहीं सकते, किसी के साथ पी नहीं सकते और किसी को छू नहीं सकते। और सातवीं शाख हरूरिया फिरके की कंजिया थी, जिनका ये मानना था, जिनकी टीचिंग्स थी, जिनकी तालीमात थी कि हम किसी को भी माल नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन मुस्तहिक है, इसलिए गैर मुस्तहिक को देना जुल्म होगा। इसलिए अगर आपने अपने माल की ज़कात निकालनी है तो पहले उसको किसी जमीन के घड़े में डाल दो, किसी जमीन में डाल दो, जब आपको पता चले हाँ ये वाकई मुस्तहिक है तो फिर उसको दो। हालांकि वो ज़कात से इनकार करते थे, उनका ये मानना था कि हम ज़कात नहीं देंगे, वो ज़कात के मुनकिर थे, लेकिन उन्होंने ऐसी तालीमात लाई, ऐसी टीचिंग्स लाई कि लोगों को उलझा के रख दिया। हालांकि कंसेप्ट ये बिल्कुल लगता है कि हाँ सही है, लेकिन कुरान और सुन्नत से हटकर है, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उससे हटकर एक अलग कंसेप्ट। दीन में हर नई बात बिद्दत कहलाती है, तो ये अलग फिरका बन जाता है फिर कि ऐसी तालीमात लाना जिनका कंसेप्ट ही नहीं है दीन और इस्लाम के अंदर, मतलब वो दीन से हटकर चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, अल्लाह ने जो उतारा, उससे हटकर चीज है, तो ये तो गुमराह अकायद वाले फिरके ही है। तो ये सातवीं शाख थी हरूरिया फिरके की। और आठवीं शाख हरूरिया फिरके की शमराह क्या है? आप इनकी तालीमात, टीचिंग्स और कंसेप्ट देखना कि क्या पेश कर रहे हैं कि किसी भी औरत को छूने या मसाज करने में कोई डर नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को रियाहीन बनाया है और रियाहीन को सूंघना कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हम उसको छू सकते हैं, हम उसके साथ मसाज कर सकते हैं, हम उसके साथ बातें कर सकते हैं, तो इसमें कोई डर नहीं है। यानी जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है किसी औरत को टच करना, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर में कील डाल दी जाए, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नजरें झुकाने का कंसेप्ट कुरान में दिया, उससे हटकर अपना एक अलग कंसेप्ट निकालना। अगर हम आज देखें तो इस कंसेप्ट को फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, जैसे कि गांधी साहब, माजरतन हम कहें, गांधी साहब कहते हैं कि किसी भी औरत के साथ हम हैंड शेक कर सकते हैं, इसमें कोई मजाइका नहीं, इसमें कोई डर नहीं, किसी भी औरत के साथ हम हैंड शेक कर सकते हैं। तो यही इनकी तालीमात थी, किसी भी औरत को हम छू सकते हैं, उसके साथ मसाज कर सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं। तो ये आठवीं शाख थी हरूरिया फिरके की। नौवीं शाख हरूरिया फिरके की अखनसिया थी, जिनका ये मानना था कि मरने के बाद कोई बुराई या भलाई नहीं है, कि मतलब अज़ाब व सवाब है ही नहीं, मतलब जज़ा व सज़ा है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में इतने तवातुर के साथ जन्नत और जहन्नुम के बारे में आयात पेश की और अहादीस जितने तवातुर के साथ आई है, उससे हटकर अपना एक अलग कंसेप्ट निकालना, अपनी एक अलग फिलॉसफी झाड़ना, अपनी एक अलग तालीमात निकालना कि नहीं भाई ऐसा है, मरने के बाद भलाई और बुराई कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम दुनिया में कुछ भी करें, जिना करें, शराब पिए, कोई बुराई और भलाई है ही नहीं मरने के बाद, तो कौन पूछने वाला। मतलब ये कि इस गुमराह फिरके के कैसे खतरनाक अकायद थे और लोगों को ये समझाते भी थे। तो ये नौवीं शाख थी हुरैरिया फिरके की। और 10वीं शाख हुरैरिया फिरके की मुहकमिया थी। इनके अंदर सहाबा का बुग़्ज़ था, खास करके हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का,
इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि मखलूक के साथ हम सुलह नहीं कर सकते। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले शाम के साथ तीसरी ट्रीटी साइन की, यानी थर्ड ट्रीटी साइन की, तो इन्होंने कहा कि हजरत अली भी काफिर है और अहले शाम वाले भी काफिर है, क्योंकि मखलूक के साथ सुलहनामा हो ही नहीं सकता, मखलूक के साथ हम फैसला कर ही नहीं सकते। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी काफिर है नाउज़ बिल्लाह, और अहले शाम वाले भी काफिर है। ये 10वीं शाख थी हरूरिया फिरके की, और 11वीं शाख हरूरिया फिरके की मोतज़िला है। ये वो मोतज़िला ही नहीं है जिनका मानना था कि कुरान जो है मखलूक है अल्लाह की, वो किसी और फिरके में आते हैं। इस फिरके की ये तालीमात थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला हम पर सही तरह से खुल नहीं रहा है, हम पहचान नहीं पाते कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। इसलिए हम इन दोनों को हक पर नहीं समझते, हम इनसे बेजार हैं। मतलब इनके अंदर सहाबा का बुग़्ज़ था तो इन्होंने ऐसी तालीमात लाई, मतलब सहाबा की बुग़्ज़ की वजह से। ये 11वीं शाख थी हरूरिया फिरके की, और 12वीं शाख हरूरिया फिरके की मैमूनिया थी। इनका बानी मैमून बिन खालिद था, जिनका ये मानना था कि रोई ज़मीन पर कोई भी इमाम नहीं हो सकता जब तक जो हमारी तालीमात है वो उनको फॉलो ना करे, तब तक वो इमाम हो ही नहीं सकता जब तक वो हमारी टीचिंग्स को, हमारी तालीमात को फॉलो ना करे। कि मतलब सिर्फ हम ही हक पर है, बाकी सारे जो दुनिया में हैं वो गैर हक पर यानी गुमराह अकीदे के साथ जी रहे हैं। मतलब उनके गुमराह अकाइद है, सिर्फ हम हक पर है, बाकी जो भी रोए ज़मीन पर लोग हैं वो सारे गुमराह हैं। इनकी ये तालीमात थी। तो ये 12वीं शाख थी हरूरिया फिरके की। तो आज हमने इन 12 को डिफाइन किया, सिर्फ डिफाइन किया। अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो फिर हम आगे एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना काफी है कि हमें कंसेप्ट समझ आए कि उम्मत के अंदर जो 72 फिरके आए वो कौन कौन से हैं। तो हमने इस वीडियो में 12 फिरकों को डिफाइन किया, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में और 12 करेंगे। इसी तरह से हम 6 एपिसोड इसके बनाएंगे ताकि 72 फिरके पूरे हो जाएं कि उम्मत के अंदर कौन कौन से 72 फिरके आए हैं, ताकि हमें उन तालीमात के बारे में पता चले। और फिर इसका हम कंक्लूजन लास्ट में बताएंगे कि फिरका वारियत असल में है क्या,